Hey guys, welcome back to our channel. Today start a fresh new video. In this video I will teach you interference of light. Before starting with the video, let me introduce myself. My name is Sunil Kumar. I am a physics teacher and you are watching SD Learning Hub, our YouTube platform. So let's start with the video. In today's lecture we have to study something called as interference of light. So what is interference of light, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी के लिए बस इतना समझ लो, इट इज अ वेव फिनोमिना. अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ने से पहले नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ इंटरफेरेंस, एंड कॉज ऑफ इंटरफेरेंस इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव. तो सबसे पहले हम एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो स्टेटमेंट लिखने से पहले नाउ लेट अस अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है. लेट से आई हैव टू सोर्स ऑफ लाइट S1 या S2 and there is a point. तो superposition principle says when two or more waves are reaching at a point simultaneously. Let's say S1 से एक लाइट वेव निकल के इस पॉइंट तक रीच कर रही है और S2 से there is a wave which is traveling and reaching at this point. And if जो S1 का जो वेव है इसका डिस्प्लेसमेंट let's say y1 है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वेव इज y1 and displacement of second wave is y2. displacement means ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, इस वेव के पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट y2 है. तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा इस पॉइंट पे, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर एडिशन होगा. सो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट तो y1 और y2 है, इनका वेक्टर एडिशन होगा. So this is the principle of superposition and this principle is responsible for interference of light as well as many other phenomena also. वो भी हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख लेता हूं. तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि when two or more waves are reaching at a point simultaneously, when two or more waves, अब ये वेव्स लाइट वेव्स भी हो सकते हैं, साउंड वेव्स के लिए भी सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल वैलिड है. तो when two or more waves reaching at a point simultaneously, reaching at a point simultaneously, then the net displacement, or I can simply call it as resultant displacement. Net displacement is vector sum, not normal sum, it is vector sum of individual displacements of wave, individual displacement. If I want to write the mathematical expression of it, individual displacements of waves, so this is the statement of superposition principle. अब mathematically मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? Mathematically you can write the net displacement is vector sum of individual displacement. So this is the mathematical expression of superposition principle. Now let us see all other effects of superposition principle. Effects means what? Result. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से और क्या क्या हो सकता है, उसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं. तो देयर आर 3 इफेक्ट्स ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. Out of the 3 effect, the first effect is called as beat. So what is beat? It is a result of superposition of wave. तो now let us see beats कब होता है. Let's say अगर कोई 2 वेव सुपर इम्पोज हो रहा है और ये जो वेव है, we all know equation of wave. Equation of progressive wave is y equal to a sin omega t minus kx. तो ये आपने अपने 11th स्टैंडर्ड में प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन पढ़ा होगा. तो दिस वेव इज अ प्रोग्रेसिव वेव. फॉर एनी वेव there are 3 parameters which distinguishes them. So the 3 parameters are, first parameter होता है एम्पलीट्यूड, मतलब 2 वेव का ये 3 पैरामीटर होता है. तो फर्स्ट पैरामीटर एम्पलीट्यूड होता है, सेकेंड उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, एंड थर्ड पैरामीटर इज डायरेक्शन. सो बेस्ड ऑन दिस 3 पैरामीटर देयर आर 3 इफेक्ट्स ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव. द फर्स्ट इफेक्ट इज बीट. तो अब देखते हैं बीट कब होता है. अगर 2 वेव सुपर इम्पोज हो रही है और उनका फ्रीक्वेंसी थोड़ा अलग अलग है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. अगर ऐसी 2 वेव सुपर इम्पोज होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सो व्हाट विल अकर? बीट.
तो बीट अकर होगा. सेकेंड इफेक्ट विल इज समथिंग कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव. सो स्टेशनरी वेव जो है, दिस इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव. दिस अकर्स व्हेन डायरेक्शन ऑफ टू वेव्स आर डिफरेंट. लेट्स से एक वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, एंड दे सुपर इम्पोज. सो दैट टाइम वी विल गेट स्टेशनरी वेव. तो टू वेव्स दे मस्ट हैव डिफरेंट डायरेक्शन. अगर उनका सुपरपोजिशन हुआ तो वी गेट स्टेशनरी वेव. द थर्ड इफेक्ट विच वी हैव टू स्टडी, इट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या इंटरफेरेंस ऑफ वेव या सिंपली जस्ट इंटरफेरेंस. तो इंटरफेरेंस कब होता है? जब दो वेव सुपर इम्पोज हो और उनका एम्पलीट्यूड अलग हो, डिफरेंट एम्पलीट्यूड. सो एट सच टाइम ड्यू टू सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस होगा. सो देयर आर थ्री इफेक्ट्स ऑफ सुपरपोजिशन. अगर फ्रीक्वेंसी अलग है दो वेव की और उनका सुपरपोजिशन हुआ तो बीट्स. अगर डायरेक्शन अलग है दोनों वेव का तो स्टेशनरी वेव. एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ इंटरफेरेंस? The two wave must have different amplitude and everything, frequency, direction same. Now we have to study something called as interference of light. So far we all know interference of light, it is caused due to superposition of wave. Now let us see the definition of interference of light. इसका definition कुछ ऐसा है: the phenomenon of modification of डिस्ट्रीब्यूशन. किसका डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन. तो जहां पे वेव सुपर इम्पोज हो रहे हैं वहां पे मॉडिफिकेशन होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी की इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. अब ये डेफिनेशन को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं. सिंपल से एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, आई हैव कंसीडर्ड टू सोर्स ऑफ लाइट S1 एंड S2. दो बल्ब है और इनसे दो वेव्स एमिट होगी इंडिविजुअल. लेट्स से कि S1 से कुछ वेव एमिट हो रही है, कुछ इसकी लाइट एमिट होगी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में. इससे जो लाइट निकलेगी इट विल प्रोपगेट इन ऑल द डायरेक्शंस. सिमिलरली जो बल्ब 2 है उससे भी कुछ वेव्स एमिट होगी, उसकी लाइट एमिट होगी, दैट विल ऑल्सो ट्रेवल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जहां पे दोनों वेव्स, दोनों सोर्स की वेव्स मीट होगी तो दिस इज द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन. तो डेफिनेशन क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ सुपरपोजिशन पर देयर विल बी मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. मतलब ऐसा होगा कि ये जो रीजन ऑफ सुपरपोजिशन है वहां पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कुछ ज्यादा रहेगी, कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत कम रहेगी. तो वहां पे मॉडिफिकेशन हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट का. सो एट सम पॉइंट द रिजल्टिंग इंटेंसिटी विल बी ग्रेटर देन I1 प्लस I2. दोनों की इंटेंसिटी बल्ब की मिला के भी जितनी होती है उससे ज्यादा इंटेंसिटी होगी. और ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जहां पे इंटेंसिटी I1 प्लस I2 से कम होगी. इस चैप्टर में ऐसी पॉइंट्स जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसे हम लोग ब्राइट पॉइंट बोलेंगे, और जहां पे इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कम होती है उसे हम डार्क पॉइंट बोलेंगे. तो बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ लाइट की इंटेंसिटीज का. कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, कहीं पे इंटेंसिटी कम हो गई. नाउ लेट अस सी. अच्छा, अगर हम लोग नॉर्मल इंस्टेंस में अगर दो बल्ब ले और दोनों को ऑन करें, यहाँ पे अगर क्लासरूम में मैं दो बल्ब लेके आऊं, दोनों को स्विच ऑन करूं, क्या मुझे ऐसा कोई पैटर्न मिलेगा? तो आई थिंक सो नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होने के लिए दो सोर्स ही नहीं, दो वेव्स ही नहीं, वी रिक्वायर्ड सम मोर कंडीशंस. नाउ लेट अस सी व्हाट आर दोस कंडीशंस. कि अगर हमें स्पेसिफिक इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है तो कुछ कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए. सबसे पहली कंडीशन क्या है? दो सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए. देयर मस्ट बी टू सोर्स ऑफ लाइट. इसके बारे में हम लोग और आगे डिटेल में पढ़ेंगे. जस्ट हम लोग अभी देख के लेते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होने के लिए व्हाट आर द सम इंपॉर्टेंट कंडीशंस.
देयर मस्ट बी टू सोर्स ऑफ लाइट एंड ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये दोनों सोर्स ऑफ लाइट कैसी होनी चाहिए? दे मस्ट बी लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, तभी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है। ये जो मैं बात किया ब्राइट पॉइंट और डार्क पॉइंट कब मिलेगा आपको? जब ये दोनों बल्ब की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। सेकेंड थिंग, द टू वेव्स मस्ट ट्रेवल नियरली इन सेम डायरेक्शन, नियरली इन सेम डायरेक्शन एंड देयर मस्ट बी अ रीजन ऑफ सुपरपोजिशन, तभी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होगी। दे मस्ट नियरली ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। अगर ऐसी कोई बात है, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं और ऐसी दो वेव सुपर इंपोज हो रही है, देन ओनली we'll get interference of light. अब लेट अस सी, यहां पे मॉडिफिकेशन इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऐसा वर्ड यूज किया गया है। मॉडिफिकेशन इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसको मैंने एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मॉडिफिकेशन इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या है। मतलब यहां पे जो लाइट है यही खुद को मॉडिफाई कर रही है ब्राइट और डार्क पॉइंट में। मैं एक एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट। लेट से there are 10 students, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, there are 10 students, और अगर मैं इनको सबको दो रुपीस अगर बांटू, इफ आई डिस्ट्रीब्यूट देम 2 रुपीस, तो इसको भी 2 रुपए मिला, इसको भी 2 रुपए, तो सभी को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं 2 रुपीस, तो टोटल कितने रुपीस होंगे? 20 रुपीस। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने 2 रुपीस में। सो अगर ऐसा कुछ हो, एक अभी ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीस है, मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट अगर मैं ऐसा करूं कि इसका 2 रुपीस मैं इसको दे दूं और इसका 2 रुपीस मैं इसको दे दूं, इसका 2 रुपीस मैं इसको दे दूं, इसका 2 रुपीस मैं इसको दे दूं और इसका 2 रुपीस मैं इसको दे दूं, सो आई एम लेफ्ट विथ, तो क्या होगा? ये जो स्टूडेंट होगा उसके पास कितना रुपीस बचेगा? इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, और इसके पास 4 रुपीस हो जाएगा। इसके पास कुछ नहीं, इसके पास 4 रुपीस, इसके पास कुछ नहीं, इसके पास 4 रुपीस। तो हुआ क्या? एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास कुछ भी पैसे नहीं बचे, एक के पास उसके डबल बचे, तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैसे हो गए। तो यहां से कोई मैंने बाहर से पैसा इसमें ऐड नहीं किया या यहां का पैसा कुछ खत्म नहीं हुआ, बस आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहां पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। लगभग कुछ ऐसा ही इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में भी होता है। यहां पे बस इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिस्ट्रीब्यूट होती है, बाहर से कोई लाइट आती नहीं, अंदर की कोई लाइट खत्म नहीं होती, बस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सो दिस वाज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देयर आर 2 टाइप्स, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? यहां पे एनहांसमेंट ऑफ वेव होता है, एंड डिस्ट्रक्टिव में देयर इज अ कैंसिलेशन ऑफ वेव। मैं इसको समझाता हूं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आई हैव अ रोप, एक रोप है मेरे पास, और मैं रोप के दोनों एंड से ना इस रोप में वेव प्रोड्यूस करवा रहा हूं। मतलब यहां से मैंने एक वेव भेजी और यहां से एक वेव भेजी। अब वो दोनों वेव ऐसे ट्रैवल करेगी, और ट्रैवल करने के बाद लेट्स से किसी पॉइंट पे दोनों वेव्स मीट हो रही है, ऐसे कुछ। ये वाली वेव यहां से आ रही थी, ये वाली वेव यहां से आ रही थी, और इस पॉइंट पे लेट से दोनों वेव मीट हो रही है, तो इसका क्रेस्ट आ रहा है, दूसरे का भी क्रेस्ट आ रहा है। ऐसा हो, या तो फिर पहले का ट्रफ आ रहा है और दूसरे का भी ट्रफ आ रहा है, तो भी सेम रिजल्ट होगा। तो अब ये रस्सी कहां जाएगी? तो अगर आप ऐसे करके देखोगे तो ये जो रस्सी है, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा बढ़ जाएगा। लेट से अगर इसका एम्पलीट्यूड A1 था और इसका एम्पलीट्यूड A2 था, तो जो रिजल्टेंट वेव बन रही है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? A1 प्लस A2। तो मैं क्या बोल सकता हूं? यहां पर एनहांसमेंट ऑफ वेव हो रहा है, एनहांसमेंट, एडिशन हो रहा है, तो एनहांसमेंट ऑफ वेव हो रहा है। सच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, मतलब यहां पे वेव सुपर इंपोज हो रही है, तो सच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो मैं इसमें कुछ ऐसे लिख सकता हूं, ऐसा कभी हो व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन crest of other wave, second wave,
then such interference is कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव क्यों? क्योंकि यहां पे एनहांसमेंट ऑफ वेव हो रहा है। एंड सेम थिंग, द सेम रिजल्ट विल बी व्हेन ट्रफ फॉल्स ऑन ट्रफ, तभी भी यहां पे जो वेव है, रिजल्टेंट वेव नीचे की तरफ जाएगी, और सच इंटरफेरेंस आर कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ लेट अस सी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेट्स से ऑन दिस स्ट्रिंग, इस रोप के ऊपर अगर दो वेव कुछ ऐसे आ रहे हैं कि जहां पे वो मीट कर रहे हैं, अगर मान लो फर्स्ट वेव का यहाँ पे क्रेस्ट आ रहा है एंड सेकेंड वेव का यहाँ पे ट्रफ आ रहा है, एंड इनकी एम्पलीट्यूड, लेट मी कंसिडर दोनों की एम्पलीट्यूड सेम है। सो व्हाट विल हैपन टू दिस रोप? तो ये जो रोप है, अगर आप प्रैक्टिकली इसे करके देखो तो ये रोप क्या होगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट हो जाना मतलब इसका एम्पलीट्यूड ने इसके एम्पलीट्यूड को कैंसिल कर दिया और ये रोप ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा। तो आई कैन से व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, इस केस में देयर इज अ कैंसिलेशन ऑफ वेव। तो कैंसिलेशन हो रहा है, इसलिए सच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर क्रेस्ट ट्रफ को मीट होगा तो कैंसिल करते हैं, और क्रेस्ट को मीट करेगा या ट्रफ को मीट करेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सो व्हाट इज द केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? व्हाट इज द कंडीशन? व्हेन क्रेस्ट फॉल्स ऑन ट्रफ or trough falls on crest, one and the same thing, then such interference is destructive interference. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आगे के चैप्टर में अगर जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो वी गेट डार्क पॉइंट्स या डार्क बैंड्स। So these were the two types of interference, constructive interference and destructive interference. After understanding constructive and destructive interference, now let us find the condition of constructive and destructive interference. अब हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कब होते हैं उसकी कंडीशंस फाइंड करेंगे। अच्छा, ये जो डेरिवेशन ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है, इसके जस्ट रिजल्ट्स हमें बाय करने, बट मैं क्या करूंगा, उसे प्रूव करूंगा। टू प्रूव दैट व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन टू सोर्स ऑफ लाइट S1 एंड S2, एंड लेट्स से दोनों के बीच में डिस्टेंस स्मॉल d है, और यहां इससे दूर एक स्क्रीन है। सो दिस इज व्हाट स्क्रीन होगा। यूं कि ये दोनों सोर्स से लाइट वेव्स निकलेंगे एंड दे विल ट्रैवल लेट्स से टुवर्ड्स वन पॉइंट P. दिस पॉइंट P इज ऑन स्क्रीन। अब ये जो दोनों वेव निकलेंगे यहां से, जो S1 से P की तरफ जाएंगे और S2 से P की तरफ जाएंगे, ये दोनों जो वेव है, लेट्स से दिस पाथ लेंथ इज x, और S2 से जो वेव पॉइंट P तक पहुंचेगी, इट विल ट्रैवल सम एक्स्ट्रा डिस्टेंस। दिस पाथ इज लिटिल लार्जर देन दिस पाथ, एंड लेट्स से दैट पाथ लेंथ इज x प्लस डेल्टा x। तो अब ये पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वो हमें प्रूव करना है। कंडीशन क्या होगी उसकी इन टर्म्स ऑफ दिस पार्ट डिफरेंस इन एवरीथिंग। तो लेट मी कंसिडर दिस फर्स्ट वेव, लेट्स से इसका एम्पलीट्यूड y1 है, सो आई कैन राइट इट्स इक्वेशन फॉर वेव 1। द इक्वेशन ऑफ वेव विल बी, let me assume it as y1 equal to a1 sin omega t. Let me call it as equation number 1. So y1 is the displacement and a1 is the amplitude and omega is the frequency for first wave. And let's say for second wave, the equation of wave I can write it as, in terms of displacement, y2 equal to a2 sin omega t plus 5. And one thing to be noted, at t equal to 0, इन दोनों सोर्स के बीच का जो फेज डिफरेंस था, दैट फेज डिफरेंस इज 0 एट द इंस्टेंट जब उन लोग वेव चली, उस समय उनकी फेज डिफरेंस 0 थी।
अब चलने के वजह से ये जो सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव में व्हाट इज दिस फाई, दिस फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स. एट पॉइंट P दिस टू वेव्स विल अराइज साइमल्टेनियसली. तो इस पॉइंट पे इन दोनों का सुपरपोजिशन होगा. तो आई विल हैव टू यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो आई कैन से बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये दोनों वेव का इस पॉइंट पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो लेट मी राइट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव्स. तो फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या है, a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरे वेव का डिस्प्लेसमेंट है y2s a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5. नाउ जस्ट आई हैव टू सॉल्व दिस. अगर मुझे इसे सॉल्व करना है या सिंप्लीफाई करना है तो यहां पे आई हैव टू ओपन द ब्रैकेट. इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता. सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव इज वी हैव टू एस्टैब्लिश अ कंडीशन. अब टेक्स्ट बुक में वो कंडीशन एज इज डायरेक्ट दी हुई है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव इट. तो मैं तो इसको ऐसे ही लिखूंगा. अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो. तो a2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं. तो साइन a प्लस बी क्या होगा, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी. तो आई गेट a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. बायो वाले स्टूडेंट साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. अब इसको आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं. सो व्हाट वी विल गेट, नाउ आई वांट टू फर्दर सिंप्लीफाई इट. तो यहां पे ये साइन ओमेगा टी है, यहां पे साइन ओमेगा टी. I want to take it common. So if I take sin omega t common, so what will be left in the bracket? a1 plus a2 cos phi plus, अब यहां पे क्या बचेगा, a2 cos omega t sin phi. तो ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन मिल रहा है. अभी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वी हैव टू फर्दर सिंप्लीफाई इट. तो सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे कुछ अजम्पशंस करने होंगे टू फाइंड द रिजल्टेंट वेव एक्सप्रेशन. तो यहां पे ये एक टर्म है एंड a2 sin phi, इफ आई कंबाइन इट तो मैं कुछ सब्सटीट्यूट करके मैं कुछ इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं. लेट मी कंसिडर, लेट a1 प्लस a2 cos phi, इफ आई एम सब्सटीट्यूटिंग इट लाइक a cos del, अगर मुझे ऐसे सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, एंड a2 sin phi को इफ आई एम सब्सटीट्यूटिंग इट एज a sin del. सो दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 3 and 4. एंड रीसब्सटीट्यूटिंग, तो आई विल गेट y इक्वल टू a1 प्लस a2 cos phi को आई सब्सटीट्यूटेड इज इट एज a cos del plus a2 sin phi I substituted it as a sin del cos omega t. तो यहां तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया इसको. अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर दो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, a sin omega t cos del प्लस a कॉमन ले लेता हूं दोनों में से और बचेगा क्या, साइन cos omega t sin del. सो अगेन आई कैन सिंप्लीफाई दिस एज a साइन a cos b प्लस cos a sin b को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ओमेगा t प्लस डेल. तो फिर से मुझे एक साइन वेव मिल रही है एंड दिस वेव इज एक्चुअली एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव. दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव. अब देखते हैं रिजल्टेंट वेव में सारे टर्म्स का मीनिंग क्या है. जहां पे a जो है, दिस इज नथिंग बट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, जस्ट हम लोग ने रिजल्टेंट वेव का एक्सप्रेशन निकाला है और टर्म्स हम लोग देख रहे हैं. एंड दिस डेल इज व्हाट, दिस इज रिजल्टेंट फेज. लेट अस सी फर्दर.
Now we have to find that resultant amplitude and resultant phase. Before finding resultant amplitude and phase, एक काम करते हैं हम लोग, जितने भी इक्वेशंस हमने पहले मिल चुके हैं डेरिवेशन में यूज किए उसको साइड में कहीं लिख लेते हैं. हमने दो वेव यूज की थी, दोनों वेव की इक्वेशन कैसी थी? एक का इक्वेशन a sin ओमेगा t था और दूसरे का था a2 sin ओमेगा t प्लस 5. सेकेंड, इन दोनों को सुपर इम्पोज करने के बाद हम लोग को रिजल्टेंट वेव की एक्सप्रेशन मिली थी. दैट रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन वाज y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल, जहां पे a हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था एंड डेल वाज द रिजल्टेंट फेज. तो पहले मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालता हूं, फिर बाद में रिजल्टेंट फेज निकालूंगा. तो टू फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो लेट्स यूज दिस एक्सप्रेशन. इसको मैंने मिटाया नहीं, इसको ऐसे ही बोर्ड पे रखा है. तो एक काम करो, स्क्वायर एंड ऐड कर लो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 and 4. इक्वेशन 3 and 4 यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. तो अगर मैं इसे स्क्वायर करूं तो लेफ्ट हैंड साइड का, इसको मैं उल्टा करके लिखता हूं, जैसे राइट हैंड साइड का पहले स्क्वायर लेता हूं, यू विल गेट a स्क्वायर cos स्क्वायर डेल प्लस स्क्वायरिंग एंड एडिंग a स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल. ये राइट हैंड साइड को मैंने स्क्वायर करके ऐड कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा मुझे? a1 प्लस a2 cos डेल का होल स्क्वायर प्लस a2 यहाँ पे cos 5 रहेगा, a2 sin 5 का होल स्क्वायर. नाउ जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस. यहाँ तो बहुत ही सिंपल है कि a स्क्वायर इफ आई टेक कॉमन तो आई गेट cos स्क्वायर डेल प्लस sin स्क्वायर डेल. वी ऑल नो विच इज इक्वल टू 1 बाई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो you'll get a2 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस इसका स्क्वायर कुछ ऐसा होगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5. तो ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ a स्क्वायर मिलेगा हमें, और यहाँ पे हमें a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5. अगेन इफ आई टेक a2 स्क्वायर कॉमन तो साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 विच इज अगेन इक्वल टू 1. तो वी आर लेफ्ट विथ, तो हमें फाइनली रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऐसा मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 प्लस a2 स्क्वायर. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला विल बी रूट ऑफ दिस वैल्यू a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 प्लस a2 स्क्वायर. सिमिलरली वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट फेज. अच्छा, रिजल्टेंट फेज फाइंड करने से पहले हम लोग को जो पहला पिछला एक्सप्रेशन मिला था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, हम उसे लिख लेते हैं. तो क्या मिला था? रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 प्लस a2 स्क्वायर. अब रिजल्टेंट फेज कैसे निकालेंगे हम लोग? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से. एक काम करो, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करो. डिवाइड इक्वेशन 4 बाई 3, हमें रिजल्टेंट फेज मिल जाएगा. तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो राइट हैंड साइड को पहले डिवाइड करता हूं, तो वो मिलेगा a साइन डेल डिवाइड बाय a cos डेल, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? a2 साइन 5 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 cos 5. अब यहां से a और a तो कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा tan डेल विल बी इक्वल टू a2 साइन 5 अपॉन a1 प्लस a2 cos 5. अब डेल मीन्स रिजल्टेंट फेज कैसे निकालेंगे? tan को वो साइड लेके जाएंगे तो tan इनवर्स ऑफ a2 साइन 5 अपॉन a1 प्लस a2 cos 5. तो ये हमारा रिजल्टेंट फेज हुआ. अब जो हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट फेज निकाला, उसको एक अलग मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, विच इज बीन यूज्ड इन सम न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. इसको बोलते हैं वेक्टर मेथड, क्योंकि हमें जो फॉर्मूले मिले एम्पलीट्यूड और फेज के, ये कुछ वेक्टर की याद दिलाते हैं हमको. मैं आपको रिकॉल कराता हूं. लेट्स से अगर ये जो दो वेव थे हमारे, उनके एम्पलीट्यूड को मैं रिप्रेजेंट करूं कुछ ऐसा. अगर ये मेरा a1 एम्पलीट्यूड है और उसको मैं वेक्टर की तरह ट्रीट करूं, और ये मेरा a2 एम्पलीट्यूड है, एंड दोनों के बीच में अगर एंगल है फाई,
तो रिजल्टेंट कैसे मिलता था? बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, रिजल्टेंट इज गिवन बाय दिस डायगोनल। तो ये डायगोनल हमें रिजल्टेंट देता था, तो डायगोनल इज अ रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर, और इसका भी वैल्यू क्या होता था? रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो वैसे ही कुछ मिल रहा है हमें, और हम लोग इसमें कुछ tan थीटा भी निकालते थे। tan थीटा क्या होता था? अपोजिट वेक्टर b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। तो यहां पे हम लोग जो एंगल निकालते थे हम लोग tan, अगर ये डेल हो जाए तो tan डेल क्या होगा? b मीन्स a2 साइन थीटा अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई। तो इस तरह हम लोग वेक्टर से भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट फेज निकाल सकते हैं, जहां पे रिजल्टेंट फेज क्या होता है? इट इज अ एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद द फर्स्ट वेक्टर। नाउ वी कैन फाइंड द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सो फार हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का क्या एक्सप्रेशन प्रूव किया? रूट ओवर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a1 प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। तो ये हमने प्रूव किया। बेस्ड ऑन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वी कैन प्रूव कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो दिस विल बी a स्क्वायर, और a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? ये स्क्वायर रूट चले जाएगा, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। दिस यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? a1 स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? i1, a2 स्क्वायर को i2, 2 रूट a1 को यू कैन राइट रूट i1 और a2 को रूट i2 cos फाई। तो हमने जनरल एक्सप्रेशन निकाल दिया रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का तो हमने पहले ही निकाल के रखा था। अब ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट ब्राइट कब होगा? मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? और ये पॉइंट डार्क कब होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए इस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, अदर वे इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये जो एक्सप्रेशन है एम्पलीट्यूड का, ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? लेट अस सी a1 a2, ये तो कांस्टेंट है, ओनली वेरिएबल यहां पे ये फाई, तो वेरिएबल फाई है। तो अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए तो मुझे कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वहां पे। इसका मतलब क्या है? ये पॉइंट P ब्राइट होने के लिए, यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए कॉस फाई मैक्सिमम होना चाहिए, तभी तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो कॉस फाई मैक्सिमम कितना होता है? वी ऑल नो कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, एंड इट्स वैल्यू इज 1 फॉर विच एंगल? फाई इक्वल टू 0 पे cos 1 होता है, नॉट जस्ट 0, और भी एंगल्स पे cos फाई का वैल्यू 1 होता है, 2 पाई पे 1 होता है, 4 पाई पे 1 होता है। लाइकवाइज अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स को मैं कैसे लिख सकता हूं? तो ये इवन नंबर आ रहा है 2 4 6, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2n पाई। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2n पाई। और इसको याद कैसे करना है हमको? ऐसे याद रख लो, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव मस्ट बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अभी हमने एक कंडीशन मिल गई फेज डिफरेंस की, और एक कंडीशन हम निकाल सकते हैं। ये तो हमने फेज डिफरेंस निकाला, तो इसका हम लोग पार्ट डिफरेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब फेज डिफरेंस ऑफ पार्ट डिफरेंस में देयर इज अ रिलेशन, फेज डिफरेंस इज नथिंग बट 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस। ये रिलेशन हमने 11th स्टैंडर्ड में प्रूव किया है। तो फेज डिफरेंस क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पार्ट डिफरेंस, वेयर पार्ट डिफरेंस इज व्हाट?
देखो ये फर्स्ट वेव गई, ये सेकंड वेव गई, दोनों के बीच में क्या पार्ट डिफरेंस है अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेल्टा एक्स एक्स्ट्रा पार्ट चली है सेकंड वेव, तो डेल्टा एक्स इज द पार्ट डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा ये फॉर्मूला, अगर मुझे फेज डिफरेंस पता है तो मैं पार्ट डिफरेंस कैसे निकाल सकता हूँ, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस की तो कंडीशन मिल गई मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए 2n π, तो पार्ट डिफरेंस कितना आना चाहिए, लेट अस सी। तो यहां से कुछ कैंसिल होगा, आई कैन से यहां से 2π कैंसिल हो सकता है, तो यहां से मुझे पार्ट डिफरेंस कितना मिलेगा, डेल्टा एक्स विल बी n λ, डेल्टा एक्स विल बी n λ। इसको मैं और एक फॉर्म में लिख सकता हूं, अगर मैं ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड करूं तो ये इवन नंबर हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा फिर, इवन मल्टीपल ऑफ λ/2, और उसको ऐसे ही याद रखना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए दो वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। तो ये हम बाहर करेंगे। तो दो वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की कंडीशन क्या है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2n π, और फेज डिफरेंस के ऊपर बेस्ड हम लोग पार्ट डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो वो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, पार्ट डिफरेंस मस्ट बी इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। नाउ लेट अस सी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, व्हाट इज एट मैक्सिमम वैल्यूज। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए इस एक्सप्रेशन में मुझे फाई का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 2n π, दिस इज अ कंडीशन, फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो cos ऑफ 2n π इवन मल्टीपल ऑफ पाई इट इज ऑलवेज 1, सो इफ यू सॉल्व दिस तो आपको मिलेगा a1² प्लस a2² 2a1 a2, cos फाई का वैल्यू 1 रखोगे तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर होगा, तो a मैक्स क्या मिल रहा है आपको, रूट के अंदर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल होने के बाद यू विल गेट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एज a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे, अब वो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा उसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी एक तो एम्पलीट्यूड के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, यहां पे आप इफ यू सब्स्टिट्यूट फाई का वैल्यू एज 2n π, तो पहले हम लोग इंटेंसिटी के फॉर्म में देखते हैं, तो यू विल गेट i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2, cos 2n π का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस यू विल गेट रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब ऐसे ही हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सारी कंडीशंस निकालते हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के मिनिमम वैल्यूज निकालते हैं। नाउ लेट अस फाइंड द कंडीशंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, देयरफॉर इंटेंसिटी विल आल्सो बी मिनिमम इस पॉइंट पे। तो वो कैसे होगा, अब अगर हम लोग देखें तो एम्पलीट्यूड मिनिमम होने के लिए cos फाई की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे जनरली बहुत सारे स्टूडेंट लोग मिस्टेक करते हैं एंड दे ट्राई टू कीप द वैल्यूज जहाँ पे cos फाई 0 हो जाए। cos का जो मिनिमम वैल्यू होता है 0 नहीं होता है, -1 होता है, तो cos फाई का मिनिमम वैल्यू इज -1 नॉट 0। अब cos फाई का मिनिमम -1 कब होगा, एट डिफरेंट फाई। फर्स्ट इज cos पाई -1 होता है, और एक बार 3 पाई रखोगे तो -1 होगा, 5 पाई रखोगे तो -1 होगा, लाइक दैट। तो जनरलाइज अगर मैं करूं इसे तो यू कैन सी यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, तो ऑड मल्टीपल मीन्स 2n-1 पाई। सो दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाउ टू बाय हार्ट इट, जस्ट याद रखो, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अब फेज डिफरेंस की कंडीशन हमने निकाल लिया, अब पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, वी नो दे हैव अ रिलेशन कि फेज डिफरेंस इज 2π/λ इनटू पार्ट डिफरेंस। तो दो वेव के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस होना चाहिए फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो फाई की वैल्यू आई राइट 2n-1 पाई जो हमने अभी निकाला, 2π/λ इनटू पार्ट डिफरेंस। अब इसमें कैंसिल हो रहा है आपका पाई, तो यहां से मुझे डेल्टा एक्स कुछ मिलेगा, डेल्टा एक्स विल बी 2n-1 λ/2।
तो यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, जस्ट सिंपली आई विल नोट, या मैं ऐसे याद रखूंगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दो वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2. नाउ लेट अस फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड. अच्छा, एम्पलीट्यूड मिनिमम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कब होगा, cos फाई का वैल्यू मुझे -1 रखना होगा. अब -1 रखूंगा तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर -2 a1 a2. cos फाई का वैल्यू मैंने -1 रख दिया, तो इसको अगर इफ आई सिंप्लीफाई फर्दर तो आई विल गेट a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर. दिस रूट एंड स्क्वायर विल गेट कैंसिल और मुझे मिनिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा, a1 माइनस a2 फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी. अब ये पॉइंट पे मिनिमम इंटेंसिटी के लिए मुझे क्या करना होगा, cos फाई का वैल्यू -1 रखना होगा, तो आई गेट i1 प्लस i2. cos फाई -1 तो 2 रूट i1 i2 हो जाएगा यहाँ पे. और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, आई मिनिमम का वैल्यू विल बी √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर. So in this way, we found all the conditions for constructive and destructive interference in terms of part difference and in terms of phase difference.